Good evening, praise the Lord. Thank God for this time. And before we go to the word, let's sing a song. ऐ मसीहा तेरा मुझको आसरा मिल गया. ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया. ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया. ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया. मेरी कश्ती को एक ना खुदा मिल गया. मेरी कश्ती को एक ना खुदा मिल गया. ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया. ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया. Praise God. Thank God for this one more day the Lord has given us. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं एक और दिन के लिए. And we are our series of honoring God. We'll continue this and I would like to read from Romans 6 verse 14. It's written, sin must not have power over you. You are not living by the law, you have life because of God's loving favor. इस परमेश्वर के उस प्रेम, परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया है और उसकी प्रेम में हम सब बने हुए हैं. एंड बिकॉज ऑफ हिज लविंग फेवर, उसके उस अनुग्रह के कारण हम में रोमियो की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि sin must not have power on us. हमारे जीवन में पाप जो है वो किसी भी रीति से प्रभुता करने न पाए. और पहले कुरिन्थियों 2:9 में भी लिखा हुआ है, ही इज द लॉर्ड ऑफ शाइनिंग ग्रेटनेस. जो परमेश्वर है वो हमारे ऊपर अपनी ज्योति को इस प्रकार से वो चमकाता है कि हम किसी भी रीति से पाप के अधीन हम नहीं रह सकते. और दूसरे कुरिन्थियों 1:4 में भी लिखा है, ही गिव्स अस कंफर्ट इन ऑल आवर ट्रबल्स. और हमारी सारी निर्बलताओं में भी वो हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है. और जब हम प्रभु में हैं, व्हेन वी आर इन द लॉर्ड हेल्प्स अस. परमेश्वर जो है हमारी सहायता मदद अगुवाई करता है और हमारी आंखें प्रभु की ओर निरंतर लगी रहती हैं. और when we are in Lord today, we'll see what's written in Colossians. If we see Colossians 3, Colossians chapter 3, verse 3. This is for us when we are in the Lord, when His shining greatness is upon us. जब हम प्रभु में हैं और प्रभु की ज्योति हम पे चमक रही है. तो Colossians 3, you are dead to the things on the earth. प्रभु का वचन बता रहे हैं. रीड दैट इन हिंदी ऑल्सो. कोलोसियंस 3 का 3 पद. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है. Yes, Paul says that here in Colossians it's written that you are now dead to the things of the earth. When we are in Lord, it's again in 2 Corinthians we have already seen that when we are in Christ we are a new creation. And our old self, we are not, we have left our old selves. हमारे जो पुराने मनुष्यत्व को हमने निकाल बाहर किया है और प्रभु में हम एक नई सृष्टि है. Lord has helped us to lead a new life. And in Colossians it's written, you are dead to the things on the earth. We are now, when we are a new creation, we are dead to the earthly things, and your new life is now hidden in God through Christ. And the new life, जो हमारा जो नया जीवन है, क्या लिखा है बाइबल हिंदी में भी हम उसको पढ़ लेंगे. हाँ, कुलुस्सियों 3:3 में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है. Yes, it is hidden in Christ. The new life we have, that is hidden in Christ, and we have a loving God
and his shining favor is always on us. Again, we can, if we see in Ephesians, we will see, we'll turn over to Ephesians chapter 1, verse 4. Ephesians chapter 1, verse 4. It's written, Ephesians chapter 1, verse 4. It's written, even before the world was made, God chose us for himself. Even before the world, God has chosen us. In the also we can read that. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और उसके निकट प्रेम से पवित्र और निर्दोष Yes, he has chosen us from the very beginning. He has chosen us, and he is with us. And this is our faith that Lord is with us, and he is from the very beginning. He has chosen us. हमने जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमको चुन लिया है. And again he planned that we should be holy and without blame. और इसको भी हम पढ़ लेंगे. आगे लिखा हुआ है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो. Yes, we are his sons and daughters. Again in verse 7 also we can continue reading in verse 7. Because of the blood of Christ we are brought and made free from the punishment of sins. Can read this also in verse 7. It's written, verse 7. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. Yes, because the Lord has shed his blood over the cross. प्रभु के उस लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिली है. तो we can put our trust in the Lord, mighty Lord. हम निरंतर प्रभु में अपना भरोसा को हम प्रभु पे, परमेश्वर पर हम लगा सकते हैं. रोमियो 12 उसके दूसरी पद में लिखा है, रोमन्स 12 we can see it's written, do not act like the sinful people of the world. Romans 12:2 it's written, do not act like the sinful people of the world, let God change you. In Hindi also we can read, do not act like the sinful people of the world. इस संसार के सदस्य ना बनो. Yes, हमको ऐसा संसार के जो लोग हैं उसके सदृश हमको नहीं लेना है. और it's written, let God change your life. हम प्रभु परमेश्वर को एक मौका दे कि हम प्रभु हमारे जीवन में कार्य करके हमको प्रभु बदले. First of all, let him give you a new mind. यदि हम प्रभु को अवसर दे तो प्रभु हमें एक नया मन देने के लिए तैयार है. And then then we'll see that we'll know what God wants us to do, and the things we'll do will be good and pleasing. When we allow God to work in our lives, God will give us a new heart, a new mind, and then whatever we do, it will be pleasing to the God. यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें तो प्रभु हमें एक नया मन देने को तैयार है. और उसके पश्चात हम जो भी कार्यों को करते हैं प्रभु के लिए, वो प्रभु उससे मतलब हमसे प्रसन्न होता है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया मन को दिया है. इसी को हम पुराने नियम में भी देखते हैं. Ezekiel 36:26 in the Old Testament also it's written, the Lord says, I will give a new heart and a new spirit and within you. Lord says, पुराने नियम में भी Ezekiel 36:26 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, है ना, और जो तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल के तुम्हें एक नए आत्मा को, एक मांस का हृदय मैं तुम्हें दूंगा. इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको मतलब Ezekiel 36:26 में प्रभु कहता है कि नया मन दूंगा. इसी और हमारी मन की हमको रक्षा करने की आवश्यकता है. जैसे कि पुराने नियम यिर्मयाह 17:9 में 17:9 इस लिखा, the Lord looked into our heart. Jeremiah 17:9 you can read that in Hindi also. Jeremiah 17:9. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा. Yes, it's but the Lord looks into our heart and he tests our mind. And in 1 Samuel also it's written, 1 Samuel 16
7. If we go to the Old Testament, 1 Samuel 16 in verse 7. 1 Samuel 16 7. It's written, "But the Lord said to Samuel, do not look at the way he looks on the outside or how tall he is, because I have not chosen him. For the Lord does not look at the things man looks. A man looks at the outside of a person, but the Lord looks at the heart." ये यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमुअल से कैसे बता रहा है, बोल रहा है कि इसको पढ़ लेंगे हम 16 का 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैं उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। Yes, the Lord, it's people, it's human nature that we judge a person by looking the outward appearances, but the Lord is all. The Lord says that He looks the inside of the earth. He seeks our heart, and He always wants that our heart should be pure. We should be pure at heart, and at that time, whatever we do, it will be pleasing to the Almighty Lord. Let's all pray for God that Lord gives us a heart which is pure and without any ill. We do not speak ill of others, and let us pray that Lord gives us a pure heart, and in that pure heart the Lord it dwells in that. परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें एक ऐसा हृदय दे जो बिना पाप के, है ना, शुद्ध मन को हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु हमें एक शुद्ध मन दे। हम एक और वचन को पढ़ लेंगे, दूसरे कोरिन्थियों 4 का 4, 2 Corinthians 4. It's written, "The good news shines as the shining brightness of the Christ, and Christ is as God is." The good news, जो हम वचन जो हम बोल रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो जो सुसमाचार है, द गुड न्यूज शाइन्स एज अ शाइनिंग ग्रेटनेस ऑफ क्राइस्ट। तो परमेश्वर की वो अद्भुत सामर्थ है इस वचन में जो है, द गुड न्यूज जो है, ये परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ है। एंड क्राइस्ट इज द गॉड, एंड वी डू नॉट प्रीच अबाउट अवर्स, हम हमारे बारे में नहीं, बट वी प्रीच द क्राइस्ट जीसस द लॉर्ड। हम जो बोल रहे हैं, पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि वी प्रीच अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु के बारे में बता रहे हैं, प्रभु की उस ज्योति, प्रभु की उस अद्भुत दया और करुणा के बारे में हमको पौलुस हमको बता रहे हैं। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। लेट्स थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल डे, एंड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस अवर्स लॉर्ड हैज केप्ट अस सेफ ऑल ऑफ अस। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि इस समय में, इस महामारी के समय में भी प्रभु ने हम सबको सुरक्षा प्रदान किया है। एंड लेट अस प्रे फॉर हिज ग्रेस एंड शाइनिंग ग्रेटनेस। प्रभु से प्रार्थना करें उसकी उस दया के लिए, उसकी उस अद्भुत ज्योति हम पर चमके, सो दैट वी कैन ऑल बी प्योर एट हार्ट। प्रभु से हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको एक शुद्ध मन दे, ताकि हम प्रभु की आराधना सच्ची ईमानदारी, सच्चाई खराई से हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। लेट्स बॉw our head for prayer. Heavenly Father, gracious Heavenly Father, we come before you. We thank you for all your verses, Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु आपकी उस अद्भुत ज्योति को प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आप चमकाएंगे। प्रभु let your shining greatness upon us, Heavenly Father. Let all of us have a pure heart, and Lord, प्रभु आप हमको एक शुद्ध मन दे, ताकि हम आपकी सच्ची आराधना हम आपको जो आपको भाता हुए एक आराधना हम आपके लिए कर सकें। हर एक बातों के लिए प्रभु थैंक यू फॉर ऑल द ग्रेस एंड अबंडेंट ग्रेस यू आर शावन अपॉन us. Thank you Lord for your words. We pray this in Jesus' name. Amen.